Krishna. So what if your smear slide is not good? Can you still manage to pass with a bad smear slide? Okay. So why students fail in peripheral smear practical? Okay. Because of bad smear? No. Not because of bad smear, but chaos created by fear of bad smear. Okay. You don't have time for another set of slide. Okay. In exam you have very limited time. You have to do with the clinicals also. Ready? And two hematology practical, not only peripheral smear. Okay. So how peripheral smear looks in the exam and identification skill are very important, not only the smear making. Ready? Why people get confused? Because in textbooks there are so goody images, है ना? Violet granules and red granules and pink granules, and but in real life you are not expert. Okay, you are not making the 1,000 peripheral smear slide in your exam. It is merely 10th or 11th. Some people are making their second or third in exam. So it will not be ideal. It will not be good. It can be medium to bad slide, but you still have to cope with the situation and you have to pass in the exam. So we are going to discuss. Ready? So this is how your peripheral smear. This is the average slide. Okay. Look in real life exam. Okay. Right? It is not ideal. It is somewhere you can see the area. Here it is under overstaining, and with cluster of RBCs, so many WBCs trapped, you can't identify. Here there is a understanding, okay, somewhere also Rowlett formation, and also you can see because of not ideal method, the WBC has ruptured, but still you have to, but still you can pass with this slide, okay? How? Because you can identify the cell, okay? Only, there are always a division of marks. Ready? So, if your smear is not ideal, you will lose some marks. But if you identify the cell and give good viva, ready? How to identify the cell, good counting method, and everything, your microscope knowledge, you can still manage to pass with a bad smear. Ready? But now students make mess where they lose the confidence when smear is not good. Don't do that. Don't do that. Okay. Stick with the strategy. Okay. So what is the strategy? Smear is bad, no problem. At least you identify the most common cells. So we start with the easiest one, RBCs and neutrophil. So you can see easily, है ना? These all are RBCs, all are RBC. You can see. Ready? RBC, they are, they are huge in numbers. Ready? Ready? Size is 7 micron. They are biconcave disc. You can see the paler part in nucleus because they are biconcave shape, and thick rim in periphery. So we will use the RBC to compare the size. So you compare first the neutrophil. This one is a neutrophil, right? This one is a neutrophil with a RBC. Okay. So you can see this is 10 to 12 micron in size. So this is 7. This is somewhat larger, 10 to 12 micron. It has nucleus. Okay. It has nucleus. So you can see it has not the ideal granules. The textbooks say you will see fine granules. Okay. Ready? So what you can see is 3-lobe neutrophil. है ना? You can identify the nucleus like dots, and you can compare the size with RBC. And neutrophil are the most numerous cell. Ready? If you are going in smear and you see one cell around size of this and multiple dots, આખો બંધ કરીને એને neutrophil ગણી જવાનું હે ને, because you have to in a zigzag shape you have to count the 100 cells, right, in exam. So now what are we looking at? Okay, in this picture, neutrophils. This neutrophil is burst. Ready? But you can still count in your 100 select, you know. We are moving in periphery in a peripheral smear in a zigzag pattern. Okay, so with your microscope, you imagine this is your slide. Ready? This is your slide. Okay, so from one end you will start counting 1 2 3 4 5 100 WBC.
okay, like a zigzag pattern. Ready? So you count 100 cells. In 100 cells, most numerous are neutrophil, around 70 to 80% are neutrophil, 20% are lymphocyte, small and large, monocyte are 8%, eosinophil are 2%, and basophil are very rare. So students do mischief in exam. Okay, वो क्या करते हैं, थोड़ा झूठ बोलते हैं, क्योंकि अच्छा स्मीयर नहीं है और आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते, तो क्या बोलते हैं, मैंने एक बेसोफिल देखा। फिर वो क्या एग्जामिनर क्या करेगा, तुम मुझे वो बेसोफिल दिखाओ कि जो तुमको मिला था, सो बेसोफिल 0 कर दो। बेसोफिल नहीं दिखा तो आप फेल नहीं होंगे एग्जाम में, बेसोफिल वेरी रेयर है ना। ओके, तो आपका काउंटिंग कैसा होगा, अराउंड 70% न्यूट्रोफिल, 20% लिम्फोसाइट, उसमें स्मॉल लार्ज दोनों आ जाएंगे, 8% अराउंड मोनोसाइट। ठीक है, अगर आपको मोनोसाइट एक दो ही दिखता है तो एक दो ही लिखो, 8 दिखना जरूरी नहीं है, 100 में से 8 दिखना जरूरी नहीं है। पर मोनोसाइट दिख गया, इओसिनोफिल दिख गया, तो फिर क्या करो, एग्जामिनर को उसको फोकस करके दिखाओ, यू विल गेट गुड मार्क्स। ठीक है, अभी इधर फोकस करते हैं अपन, यहाँ पे अपन कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ 4 लोब न्यूट्रोफिल। ओके, 4 लोब न्यूट्रोफिल। ठीक है, इसका ये 1 लोब, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंड इफ यू कैन thread like they are connected. Ready? Again, this is a 4 lobe neutrophil. Again, 1 2 3 4। यहाँ पे आपको कहीं पे ग्रेन्यूल्स है ना, होती है, दो रंग की ग्रेन्यूल होती है, मिक्स होती है, फाइन होती है, पर आपको ऐसे नहीं दिखेंगे। और ये क्या है, ये तो आरबीसी है, पर ये जो बिंदी जैसा, जो लड़कियां इधर बिंदी लगाती है ना, तो दिस इज एक्चुअली स्मॉल लिम्फोसाइट। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना, बहुत ध्यान से अगर आपने अपना वीडियो किया एनलार्ज, तो यू कैन सी हियर, this is the nucleus, but very small peripheral side, this is a portion of cytoplasm. Okay, so this is a small lymphocyte. Ready? So with even with, और देखो इधर भी एक small lymphocyte छुपा हुआ है। Ready? This is a small lymphocyte. This can be a platelet. Ready? Platelets are mostly in a groups. Again, वो वाला मैंने बहुत खराब कर दिया था, आप इधर आ जाओ फिर से। A 4 lobe neutrophil, again a 4 lobe neutrophil, a burst neutrophil 4 lobe, a small lymphocyte, a small lymphocyte। ठीक है, अभी देखो लार्ज lymphocyte, स्मॉल lymphocyte कैसा था, है ना, ऐसे एकदम बिंदी जैसा दिखता है। ओके, ऐसे 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 बिंदी जैसी होगी, उसको स्मॉल क्यों बोलते हैं पता है, क्योंकि दे आर मोस्टली स्मॉलर देन आरबीसीज आल्सो, है ना, उसकी साइज है अराउंड 6 टू 7 माइक्रोन, जबकि आरबीसी की है 7 टू, है ना, 8 माइक्रोन। तो दे आर स्मॉलर देन आरबीसी समटाइम, एंड वेरी इवन नॉन, थोड़ा सा भी नहीं दिखता, है ना, बिंदी जैसा ही न्यूक्लियस दिखता है, साइटोप्लाज्म तो दिखता ही नहीं है। ठीक है, अभी देखो ये क्या है, ये लार्ज लिम्फोसाइट है, क्यों, क्योंकि देखो आप अगर बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो इतना सारा साइटोप्लाज्म है। ओके, तो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशियो, है ना, अगर पूरा सेल को आप 100% गिनोगे, 100%, 100% सेल की साइज गिनोगे, तो ये है न्यूक्लियस, ये है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म अगर 20% से भी ज्यादा है ना, न्यूक्लियस चाहे बोलो आप 80%, ओके, और साइटोप्लाज्म का अगर 20%, तो 20% से ज्यादा है, तो इट इज डेफिनेटली लार्ज लिम्फोसाइट। ओके, सो दिस वन इज अ लार्ज लिम्फोसाइट। ओके, क्योंकि पूरा रिम दिख रहा है अपने को, है ना, पूरा ऑलमोस्ट अ कंप्लीट रिम, बंगड़ी जेऊ रिम अराउंड न्यूक्लियस। नाउ अगेन देखो, ये देखो कम, डेफिनेटली ये एक तो वायोलेट है ना। रेडी, ये वाला स्मॉल लिम्फोसाइट है, वायोलेट है डॉट, और बिल्कुल भी पेरिफेरल रिम नहीं दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा है साइटोप्लाज्म कोशरस। देखो ये डेफिनेटली इओसिनोफिल है, पर आपको एग्जाम में क्या बोलते हैं, रेड ग्रेन्यूल्स दिखेगा। अभी रेड ग्रेन्यूल्स के चक्कर में मर जाएंगे स्टूडेंट्स। एग्जाम बुक जो होती है ना, टेक्स्ट बुक जो होती है ना आपकी, प्रैक्टिकल बुक वगैरह, वो डिजिटलाइज्ड होती है, उसको आर्टिस्ट लोग उसमें डॉट डॉट करते हैं और एकदम आइडियल कलर ऑफ न्यूक्लियस। रियल लाइफ में ऐसा दिखता है, देखो पिंक जैसा न्यूक्लियस दिखेगा, ओके, लवेंडर या वायोलेट या पिंक जैसा, पर इट इज अ स्पेक्टिकल शेप। और आप कॉन्सेंट्रेट करो ये पोर्शन पे, जो धागा जैसा है ना,
जो ये दो लोब ऑफ न्यूक्लियस को जोड़ रहा है। इट इज थिकर देन द न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल का जो होता है ना वो थीन होता है, पतले रेशे जैसा। ये बराबर झाड़ा है, जैसे कि चश्मा पहना हो ना तो स्पेक्टिकल शेप न्यूक्लियस आइडियल। तो इओसिनोफिल आपको वैसे बहुत कम दिखेंगे, है ना, दे आर लेस देन 2%, पर स्पेक्टिकल शेप बाइलोब न्यूक्लियस होते हैं। ओके, साइज क्या है उनकी, अराउंड मोस्टली न्यूट्रोफिल 10 to 14 माइक्रोन। ओके, ग्रेन्यूल्स कोर्स राउंड पिंक। ठीक है, अगर आपको दिखती है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस। नाउ दिस वन इज, आप नक्की करो लार्ज है कि स्मॉल लिम्फोसाइट है। अगर आप पहली नजर में देखो ना तो आपको सिर्फ न्यूक्लियस दिखता है इधर, ठीक है, और आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो फिर आपको इतना सारा साइटोप्लाज्म भी दिखेगा। सो दिस वन इज अ लार्ज लिम्फोसाइट। ओके, ओके, नाउ मोनोसाइट। मोनोसाइट का साइज है 18 टू 21 माइक्रोन, है ना, सबसे बड़ा सेल है। और यू कैन सी राजमा चावल या तो अपना वाल या तो किडनी शेप, किडनी किडनी अपने किडनी होती है ना, किडनी, ठीक है, किडनी शेप। रेडी, न्यूक्लियस उसी पे आप फोकस करो, क्योंकि साइटोप्लाज्म ब्लू कलर का नहीं दिखने वाला है आपको, ठीक है, ब्लू कलर का ऐसा आइडियल साइटोप्लाज्म यू विल नॉट फाउंड। आपको सभी का पिंक ही दिखेगा, और न्यूक्लियस का कलर भी आपको सभी का वायलेट या पिंक जैसा ही दिखेगा। व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन, द शेप ऑफ न्यूक्लियस एंड द साइज ऑफ द सेल, है ना, कंपेयर इट विथ आरबीसी, कंपेयर इट विथ ईच अदर। अभी सारे सेल फिर से, है ना, एक साथ देखो। सबसे पहले ये है लार्ज लिम्फोसाइट, उसको आप कंपेयर करो ये वाले सेल से, ये है स्मॉल लिम्फोसाइट। तो देखो ये बिंदी जैसा है, दिस वन इज स्मॉल लिम्फोसाइट, बिंदी जैसा है ना, कहीं पे भी आसपास आपके क्या नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं है। जबकि ये लार्ज लिम्फोसाइट है तो उसका न्यूक्लियस भी बिंदी जैसा ही है, पर उसके आसपास क्या है, साइटोप्लाज्म। ओके, तो देखो ये साइटोप्लाज्म है और ये हो गया अंदर का न्यूक्लियस, ठीक है। दिस इज लार्ज लिम्फोसाइट, दिस इज स्मॉल लिम्फोसाइट, कंपेयर करो आपको आरबीसी के साथ, ठीक है। अभी देखो ये हो गया न्यूट्रोफिल, है ना, ये है न्यूट्रोफिल, ये है न्यूट्रोफिल, ये न्यूट्रोफिल है। अभी ये न्यूट्रोफिल पे फोकस करो। अभी देखो वो जो न्यूक्लियस को जोड़ते हैं वो थ्रेड कितना महीन, कितना बारीक है ना, नहीं दिख रहा है। जबकि इधर इओसिनोफिल के लोब्स को जोड़ने वाला थ्रेड कितना मोटा है। ओके, और बाइलोब है तो इओसिनोफिल, है ना, इओसिनोफिल आर मोस्टली बाइलोब, न्यूट्रोफिल भी बाइलोब हो सकते हैं। ओके, हमको मोस्टली 3 और 4 लोब न्यूट्रोफिल देखने को मिलते हैं। दिस वन इज इओसिनोफिल, ये रेडिश होता है, ये पर्पलिश होता है। देखो आप इसको पास पास कलर देखो, दिस वन इज अ पर्पलिश, है ना, आपको थोड़ा सा इधर पर्पलिश ह्यू दिख रहा है बिकॉज ऑफ ग्रेन्यूल, इसको इधर रेडिश ह्यू बिकॉज ऑफ ग्रेन्यूल्स, ठीक है। नाउ सबसे अलग है और सबसे बड़ा है साइज में, मैंने आरबीसी का साइज मैच करने की कोशिश की है। तो देखो इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल का ऑलमोस्ट सेम साइज होता है, पर सबसे बड़ा न्यूट्रोफिल से 1.5 टाइम कौन है, मोनोसाइट। और उसका न्यूक्लियस से ही पता चल जाएगा, बीन शेप किडनी शेप न्यूक्लियस, उसका न्यूक्लियस ही सबसे डिफरेंट है, ठीक है। साइटोप्लाज्म का कलर ब्लू, ठीक है। और बेसोफिल भाई मत बोलना कि मुझे बेसोफिल दिखा, क्योंकि बेसोफिल बहुत रेयर होता है। मुझे भी ये स्लाइड में बेसोफिल नहीं दिखा, हम लोगों को हीमेट लैब में तो हमने बेसोफिल नहीं रखा। आप बोलोगे कि मेरे को बेसोफिल दिखा तो फिर एग्जामिनर वहीं पे अटक जाएगा कि बेसोफिल दिखाओ, ठीक है।